Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Swati Prabhu. I live in Bangalore. अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है उसका ये मतलब है कि आप भी जापान का ट्रिप प्लान कर रहे हो, है ना? So in this video I'm going to help you plan your Japan trip. Let's start with the first process, which is the visa process. I'm going to help you with all the documents required. सब जो भी process होता है सब ये वीडियो में हेल्प करूँगी. So बैक स्टोरी, मैं और मेरे पति 2024 this year September में we had a 10-day trip to Japan. So we went to 3 cities, which is Tokyo, Kyoto and Osaka. It was 12 days with flights. So ये हमारे ट्रिप के लिए हमने वीज़ा कैसे अप्लाई किया, व्हाट वाज द प्रोसेस, ये सब मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी. एंड इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके पास में घंटी भी है, वो भी दबा देना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ जापान वीज़ा, आपको पता रहेगा कि अभी ई वीज़ा का भी ऑप्शन है. सो यू कैन अप्लाई योर वीज़ा इन 2 ways. One is you can apply it online. You can apply it for the e-visa by yourself, or second by taking an appointment with VFS Global. आपके सिटी में रहेगा या most of the metro cities में you have a VFS Global office, so you can go there and take an appointment in prior. और उसके बाद आप सारे documents लेके जाओगे तो you can get your visa easily. So I'll help you understand which documents you will have to take so that your visa process is going to be easy. So first, main stuff. What do you need is passport, right? But when you're planning any abroad trip, make sure that your passport has a validity of 6 months. Like if your passport is expiring next year, June, May, so until this December you can travel. So same holds true for Japan as well. So you just make sure that your passport is valid for minimum 6 months from your date of travel. Second, you need to click a photo for Japan visa. तो उसका साइज़ रहता है 45 mm इंटू 35 mm. आप ये जापान की ई वीज़ा वेबसाइट में भी जाके कंफर्म कर सकते हो, बट दिस इज़ द फोटो साइज. सो जस्ट गेट फोटोज क्लिक फ्रॉम योर नियर बाई फोटोग्राफर फोटोशॉप में जाके. थर्ड वन इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म. तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है कि आप जापान की वीज़ा साइट में जाओगे तो यू विल फाइंड अ एप्लीकेशन फॉर्म विच यू हैव टू डाउनलोड. यू हैव टू जस्ट fill necessary details like name and when is your date of travel and all that basic things they would have asked, address and everything. वो fill करके आपको रखना पड़ेगा. This is one of the main forms you will require. Fourth one is cover letter. Cover letter होता क्या है? It's just a document जिसपे आप एक declaration देते हो कि I'm going on this date, these are my travel dates, मेरा expense इतना आने वाला है, I'm employed with this company, I plan to come back to my home country, all this. It's just a basic document. अगर आपसे नहीं होगा तो आप कोई एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ लो आपकी सिटी में, उनको बता देना कि आपको एक कवर लेटर चाहिए, वो एक नॉमिनल चार्ज में वो आपको करके दे देंगे. फिफ्थ वन इज NOC और लीव लेटर. So if you're a salaried employee just like me and my husband were, like we work in corporate, so we had to take a NOC from our company. You will have to ask them to mention that these are the dates you are traveling, and फिर उसके हिसाब से आपको एक stamped and sealed with signature एक NOC letter, physical NOC दे देंगे या leave letter. You can take it from your HR. So this is the fifth document you will require. Sixth one is all of your stays का accommodation details booked रहना चाहिए. एंड ये डिटेल्स का आपको कॉपी दिखाना पड़ेगा, लाइक बुकिंग अकोमोडेशंस का. तो ये आप क्या कर सकते हो, सिंस यू स्टिल नॉट गॉट द वीज़ा और आपको पे नहीं करना है सारे अकोमोडेशंस के लिए, तो आप एक काम कर लो कि booking.com में आपको ऐसे एक ऑप्शन रहता है कि बुक नाउ पे लेटर. पहले अपना आइटिनरी बना लो, आइटिनरी के हिसाब से विच एवर सिटी यू आर स्टेइंग, सो उतने दिन का आप booking.com में जाके ऐसे बुकिंग कर लो एंड दैट अकोमोडेशन ऑल्सो वर्क्स. सो बुक नाउ पे लेटर वाला कर दो सो दैट यू आर नॉट पेइंग एनी अमाउंट. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? तो सेवेंथ पॉइंट इज आइटिनरी. तो आपको एक आइटिनरी होना चाहिए आपके पास जहाँ पे आपने लिखा होगा कि इफ़ यू हैव अ 10-day ट्रिप प्लान, तो 10 days में कौन सी सिटी में कितने दिन रहने वाले हो एंड विच इज अकोमोडेशन यू आर बुक. लाइक वी वेंट टू टोक्यो, क्योटो एंड ओसाका. तो 4 days, फर्स्ट 4 days इन टोक्यो, तो टोक्यो में कौन सा अकोमोडेशन, विच डे, व्हाट आर वी डूइंग. सो यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन एक शीट पे बेसिक कि फर्स्ट डे मैं ये टेम्पल जा रही हूँ एंड उसके बाद ये प्लान है. सम 3 things वॉट एवर यू आर डूइंग इन दैट डे, जस्ट हैव टू मेंशन इट. विच डे आर यू गोइंग फ्रॉम टोक्यो टू क्योटो, वो भी ऐसे ऐसे मेंशन करके आपको 10 days का एक बेसिक आइटिनरी बनाना है. and this has to match with your flight ka dates. So which day you are landing in Japan
जो भी आपने फ़्लाइट का बोला है तो दैट डे से आपका आइटिनरी स्टार्ट होना चाहिए, एंड जिस दिन आपने बोला है कि आपका रिटर्न फ्लाइट है उस दिन तक आपका आइटिनरी क्लियर होना चाहिए विथ अकोमोडेशन डिटेल्स। 8th डॉक्यूमेंट इज लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज बैंक स्टेटमेंट? आपको आपके बैंक में मिनिमम ऑफ 1.8 lakhs to 2 lakhs पर पर्सन रखना पड़ेगा when you're planning to get your Japan visa. तो to check if you have this amount in your bank or not, they would require your last 3 months का बैंक स्टेटमेंट्स। तो ये बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक में जाके, मतलब आप ऑनलाइन तो डाउनलोड कर ही सकते हो, बट आपको बैंक में जाके उसको बैंक एम्प्लॉई से स्टैम्प करवा के सिग्नेचर डलवाना पड़ेगा ऑन ऑल पेजेस, एंड फर्स्ट एंड लास्ट पेज में आपको सिग्नेचर भी डलवाना पड़ेगा, बाकी पेजेस पे स्टैम्प होना ज़रूरी है। सो यू विल हैव टू हैव द बैंक स्टेटमेंट अंटिल 1 or 2 days बिफोर योर VFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट। अगर आपका अपॉइंटमेंट है 10th December, तो 8th December तक आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स का ये होना चाहिए विद स्टैम्प्ड एंड साइंड, एंड यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट लाइक 1.8 lakhs पर पर्सन। उतना हमारा तो हमने अराउंड 2 lakhs पर पर्सन मेंटेन किया था, विदाउट एनी इशू हमारा हो गया। बट आप 1.5 के नीचे तो मेंटेन मत करना, उससे ऊपर होना चाहिए। दे आर चेकिंग इफ यू आर एबल टू लाइक अफोर्ड योर जापान ट्रिप, तो दैट्स द मेन क्राइटेरिया ऑफ डूइंग दैट। तो आप मतलब लास्ट 10-15 दिन बिफोर योर अपॉइंटमेंट ऑल्सो आप डाल सकते हो आपके अकाउंट में। इट नीड नॉट बी देयर कंसिस्टेंटली सिंस लास्ट 3 months। 10 दिन पहले भी रहेगा तो ठीक है, बट अंटिल योर वीज़ा गेट्स अप्रूव्ड आप वो निकालो मत। 9th इज ITR। सिंस वी वर सैलरीड एम्प्लॉयज़, हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो ITR फाइलिंग जो लास्ट 2 साल का है वो हमको डाउनलोड करके, दैट्स योर 9th डॉक्यूमेंट यू हैव टू सबमिट फॉर लास्ट 2 years मिनिमम। 3 years तक दे सकते हो, बट 2 years इज इनफ, मोर देन इनफ। सो 10th डॉक्यूमेंट वुड बी लास्ट 3 months का पे स्लिप। यू अगेन हैव टू जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम योर पोर्टल। कुछ सिग्नेचर विग्नेचर नहीं, आपको सिर्फ पे स्लिप्स, इफ बोथ ऑफ यू आर ट्रैवलिंग बोथ ऑफ यू हैव टू शो योर पे स्लिप्स। 3 months का पे स्लिप्स यू विल हैव टू शो। 11th वन इज राउंड ट्रिप टिकट्स। तो आपके पास कंफर्म्ड राउंड ट्रिप टिकट होना चाहिए फॉर द डेट ऑफ द आइटिनरी यू हैव प्लान। 10 दिन का है तो फ्रॉम योर होम कंट्री टू जापान एंड जापान टू होम कंट्री ऑन दैट पर्टिकुलर डेट यू विल नीड टू हैव राउंड ट्रिप टिकट्स। तो ये कैसे बुक कर सकते हैं मैं टिप दूंगी आपको, बट यू विल हैव टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। तो लास्ट में मैं एक टिप दूंगी सो दैट यू डोंट लूज योर मनी बाई चांस यू डोंट गेट योर वीज़ा, तो उसका एक टिप दूंगी मैं। तो हो गया 11 डॉक्यूमेंट, राउंड ट्रिप टिकट्स, कन्फर्म्ड टिकट्स दिखाना है। फिर 12th है पासपोर्ट कॉपी। पासपोर्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, उसका एक कॉपी भी निकाल देना फ्रंट एंड बैक, सो जेरोक्स। ये हो गया। 13 डॉक्यूमेंट वुड बी इफ़ यू आर मैरिड, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि आप दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हो। अभी मैंने बोला था मैं आपको एक टिप दूंगी। तो टिकट का क्या होता है, एक्चुअली उनको चाहिए आपका कंफर्म टिकट, बट जापान वीज़ा दे कंसिडर समथिंग कॉल्ड डमी टिकट। कोई एक ट्रैवल एजेंट को आप कांटेक्ट करके आपके सिटी में यू कैन आस्क देम फॉर अ डमी टिकट। तो डमी टिकट इज एक्चुअली अ कंफर्म टिकट जो आपको ट्रैवल एजेंट एक नॉमिनल चार्ज में बुक कर देंगे, लाइक अराउंड 1000 रुपीज़ अप एंड डाउन का, मतलब राउंड ट्रिप का वो बुक करके दे देंगे आपको। तो यू जस्ट हैव टू आस्क देम कि ये डेट पे आप बुक कर देना विच इज़ मैचिंग योर आइटिनरी। अगर VFS अपॉइंटमेंट आपने लिया है 10th को, तो 9th या 10th मॉर्निंग को उनको बुक करना पड़ेगा, बिकॉज उसका वैलिडिटी रहता है 3 days या ऐसे कुछ। तो व्हेन द वीज़ा ऑफिसर जो आपका वीज़ा अप्रूव कर रहा है वो PNR डाल के देखेगा कि ये एक्टिव है कि नहीं, एक्टिव दिखना चाहिए। आफ्टर 3 days वो एक्सपायर हो जाता है, बट वो 3 days के लिए इट्स अ वैलिड रियल टिकट। दिस इज़ वन वे वेर यू कैन सेव मनी, बिकॉज अगर आपने बुक कर दिया पहले ही फ्लाइट्स एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो आप एक काम करना, हमने भी यही किया था कि डमी टिकट आप बुक कर लो कोई ट्रैवल एजेंट से, तो आपका वो एक सेट हो जाएगा। दूसरा मैंने पहले भी बोला था, अकोमोडेशन, कभी पूरा पैसा मत देना बिफोर यू गेट योर वीज़ा। तो बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शंस बहुत मिलेगा, वो बुक करके रखना, वही सबमिट करना। लेटर ऑन वंस यू गेट योर वीज़ा यू कैन चेंज दोस अकोमोडेशन, जो आपको मर्जी वो आप बुक कर लेना, बट स्टार्टिंग में ये दोनों कर देना। सो दीज आर माई 2 टिप्स जो आपको हेल्प करेगा आपके वीज़ा प्रोसेस में। तो हम गए थे ट्रैवल एजेंट के थ्रू, सो वी गॉट आर ई-वीज़ा जो एक पेपर वीज़ा होता है, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं आने वाला है। तो आपको एक पेपर मिलेगा जिसपे एक QR कोड रहेगा। तो व्हेन यू गेट योर वीज़ा एंड यू आर इन द एयरपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिसर, यू जस्ट हैव टू स्कैन इट ऑन योर फोन, आपको आपका वीज़ा दिख जाएगा।
So for this whole process we paid the travel agent around 3,500 in total. उसमें वीज़ा चार्ज होता है अराउंड 1,500 to 1,700 के बीच में. फिर डमी टिकट, कवर लेटर, सर्विस चार्ज, ये सब मिला के अराउंड 3,500 हमने पर पर्सन पे किया था. And once the visa was submitted VFS Global में, around 10 to 12 days में हमको हमारा वीज़ा मिल गया. तो ट्रैवल एजेंट के पास था, हम जाके लेके आ गए. तो दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू अप्लाई फॉर द वीज़ा. बट ऑल यू हैव टू डू इज़, आपके पास सारे ये 12 या 13 डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला, यू विल हैव टू हैव इट इन प्लेस. फिर आपको थोड़ा कैश मेंटेन करना पड़ेगा, द अमाउंट इन योर अकाउंट, एंड देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी टू गेट अ वीज़ा. सो वो आपको चिंता नहीं करने का है. ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट फॉलो वॉट एवर आई हैव टोल्ड एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी. तो I hope I have helped you in planning your visa process, and keep watching my channel for more Japan related videos, and I'm going to shoot a lot more content on this channel. So keep following. Thank you.